وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیزہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد احرس، میں اور مہا پجاری اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر پہاڑی درے میں داخل ہو رہے تھے، اور ہم جیسے ہی وہ درہ عبور کرنے کے بعد کھلے میدان میں پہنچے تو ذرا ہی دور ایک قطار میں مشعلیں روشن نظر آئیں۔ شاید بستی کی حفاظت اور نگرانی کے خیال سے سردار آشا نے بستی کے باہر محافظ مقرر کر دیے تھے۔ مہا پجاری نے اظہار خیال کیا۔ میں نے اور احرس نے مہا پجاری کے کہنے پر اپنے گھوڑوں کی رفتار آہستہ کر لی۔ خود مہا پجاری نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور جلد ہی ہم مشعل بدست ان محافظوں کے قریب پہنچ گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ذہن کو پہلا جھٹکا یہ لگا کہ ان کے شانوں سے رائفلیں لٹکی ہوئی تھی، اور میرے لیے یہ بات خلاف توقع ہی تھی کہ گزشتہ 8 سال کے دوران میں جدید اسلحہ دور دراز بستی تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور میں نے یہی دیکھا، سوچا ممکن ہے کہ وادی سبز تک بھی یہ جدید اسلحہ پہنچ چکا ہو۔ ایسی صورت میں اپنے درینہ دشمن سیان کو زہر کر لینا یقیناً میرے لیے آسان نہ ہوتا۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک محافظ نے درست آواز میں سوال کیا، اور کہاں جا رہے ہو؟ مہا پجاری نے درستی کا جواب نرمی سے دیا، مہربان سردار آشر ہمیں اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے، یقیناً وہ ہم سے مل کر خوش ہوگا، اور تجھے شاید یہ نہیں معلوم اے اجنبی بوڑھے کہ مردے خوش یا ناخوش نہیں ہوا کرتے۔ محافظ نے تندی انداز میں آہستہ سے کہا، اور میں چونک اٹھی، اور غالباً مہا پجاری کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، اور میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ سردار آشر زندہ نہیں تھا، اور پھر اب اس بستی کا سردار کون ہے؟ میں نے سوچا، اور پھر مہا پجاری کے کچھ کہنے سے پہلے ہی یہی سوال میری زبان پر آ گیا، اے اجنبی لڑکی، کیا تو نے کبھی سرداروں کے سردار سیان کا نام سنا ہے؟ ہاں سنا ہے، میری بجائے مہا پجاری نے جواب دیا، مگر وہ تو وادی سبز کا سردار تھا، اور اب وادی سبز کے آس پاس جتنے قبیلے بھی آباد ہیں اور جتنی بستیاں ہیں، سب پر سرداروں کے سردار سیان ہی کی حکمرانی ہے۔ اس نے ہر بستی میں اپنا ایک نائب مقرر کر دیا ہے، اور یہاں کا نائب سردار داہب ہے، محافظ نے بتایا، اور پھر وہ عجیب سی نظروں سے میرا جائزہ لے کر اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوا، تیرا کیا خیال ہے، نائب سردار واہب کو کیا یہ تحفہ پسند آئے گا؟ یہ تحفہ تو اتنا قیمتی معلوم ہوتا ہے کہ سرداروں کے سردار سیان کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ سیان ایسے تحفے لانے والوں کو مالا مال کر دیتا ہے، اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا محافظ مجھے ندیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ ہم تینوں ان محافظوں کے ڈرگے میں تھے، اس حصار سے نکل جانا آسان معلوم نہیں ہوتا تھا، اور میرے لیے یہ خبر باعث تشویش تھی کہ آس پاس کی تمام بستیوں پر بھی سیان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ 8 سال کے عرصے میں سیان نے اپنے اقتدار کو بے حد مضبوط کر لیا تھا۔ اس کی مملکت کی حدود اب آس پاس کے علاقوں تک بھی پھیل گئی تھی۔ اس کے علاوہ جدید اسلحہ بھی اس تک پہنچ گیا، اور نادانستگی میں ہم دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے، اور یہ بات ہمارے سان و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اے اجنبی بوڑھے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے، پہلے محافظ نے مہا پجاری کو سخت لہجے میں مخاطب کیا، اور اگر تو نے ہماری بات مان لی تو ہم تجھے اور تیرے ساتھی نوجوان کو یہاں سے زندہ واپس جانے دیں گے، ورنہ۔ دوسرے محافظ نے دھمکی دینے کے انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، اور پھر چند لمحے بعد بولا، بول کیا کہتا ہے، زندگی چاہیے یا موت؟ اس سے پہلے کہ مہا پجاری کوئی جواب دیتا میں بول اٹھی، زندگی۔ تم ان دونوں کو جانے دو، میں تمہارے ساتھ رکنے پر آمادہ ہوں۔
इस वक्त मसलत का यही तकादा है। अगर वो दोनों लश्कर में वापस ना जाते तो फिर मेरी बाजियाबी के लिए किस तरह कोशिश कर सकते थे, मगर अहरस मेरी बात की तह तक नहीं पहुंच सका और मरने मारने पर तुल गया। तुम इसे नहीं रोक सकते, वो चीख कर मुहाफिजों से बोला। ये भी हमारे साथ वापस जाएगी, लेकिन मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। मजबूरन मुझे मदाखलत पर करना पड़ी। मैं सरदारों के सरदार सियान की बीवी बनकर फख्र करूंगी। आतून, ये तू क्या कह रही है? सियान तो अजीम है। महाज पुजारी ने अहरस की बात काट दी। शायद वो समझ गया था कि अहरस जोशो जज्बात में कोई गैर दानिशमंदाना बात अपनी जुबान पर लाने वाला था। गालबन उसने मेरे बदले हुए रवैये को भी महसूस कर लिया और अंदाजा लगा लिया कि मैं क्या चाहता हूँ, और वो उसी लिए अहरस को समझाने लगा। ऐ मेरे बच्चे, जब खुद आतून ही हमारे साथ वापस चलने से इनकार कर रही है तो फिर हमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आओ वापस चलें। इसे अपने साथ वापस ही ले जा ए अजनबी बूढ़े, वरना ये हमारे हाथों मारा जाएगा। इसे शायद अजीम सियान की अजमत का अंदाजा नहीं, मुहाफिज ने महापुजारी से कहा, और मैंने अब तक बहुत बर्दाश्त किया है, वो भी इस लड़के की वजह से जो अजीम सरदार सियान की बीवी बनना चाहती है, मगर अब हद से गुजर रही है। बेहतर होगा कि तू हद से गुजरने से पहले इसे ले जा। जाते जाते अहरस ने मुझे सख्त नजरों से देखा। यकीनन जज्बात ने उसकी अकल को खबत कर दिया था और वो शायद इस गलतफहमी में मुब्तला हो गया कि मैं वाकई सियान पर रीझ गई हूँ और यहाँ के आने का मकसद भी भुला बैठी हूँ। जब मैंने महापुजारी के साथ अहरस को पहाड़ी दर्रे की तरफ वापस जाते देखा तो इत्मीनान का गहरा सांस लिया और मुझे यकीन था कि महापुजारी अहरस को मेरे बदले हुए रवैये की असल वजह से आगाह कर देगा। महापुजारी और अहरस की नजरों से उज्जल होते ही पहले मुहाफिज ने हाथ के इशारे से बकिया मुहाफिजों को पीछे हटा दिया, मगर अपने साथी दूसरे मुहाफिज को अपने पास ही रोक लिया। पहला मुहाफिज उस दस्ते का सालार मालूम होता था और दूसरा मुहाफिज शायद उसका नायब था। दूसरे मुहाफिज जब पीछे हटकर खड़े हो गए तो पहले मुहाफिज ने अपने साथी को मुखातब किया। मेरा ख्याल है कि अगर नायब सरदार वाहब को इस हसीन तोहफे की सुनगुन हो गई तो वो इसे हमसे छीन लेगा। फिर मालूम है क्या होगा? हम इस इनाम से महरूम हो जाएंगे जो हमें सरदार सियान से मिलने की उम्मीद है। तू बता, इस तोहफे को फिलहाल सब की नजरों से और खास तौर पर नायब सरदार वाहब की नजरों से छुपाकर कहाँ रखा जाए? अगर तू ये चाहता है कि यह हसीन तोहफा सरदार सियान तक बेहिफाजत पहुंच जाए और हम माला माल हो जाएं और उस पर नायब सरदार वाहब की नजर ना पड़े, तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत है। वो सूरत ये कि हम जितनी जल्दी मुमकिन हो सरदार सियान तक इसे पहुंचा दें। दूसरे मुहाफिज ने मशवरा दिया। फिर तो हमें सुबह होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहला मुहाफिज सर हिलाकर बोला। और अगर हम इस तोहफे को लेकर इसी वक्त वादी सब्ज की तरफ रवाना हो जाएं तो शायद निसफ शब गुजरने तक वहां पहुंच जाएंगे, मगर रात को शायद हम सरदार सियान से ना मिल सकें। तो क्या हुआ, कम से कम वहां पहुंचकर हम नायब सरदार से तो महफूज हो जाएंगे। हाँ, ये तो तूने ठीक ही कहा है। पहला मुहाफिज ये कहकर कुछ सोचने लगा और फिर बोला, और यहाँ हम दोनों की जगह कौन जिम्मेदारी संभालेगा? ये भी सोचा। दूसरे मुहाफिज ने किसी का नाम लिया और पहले मुहाफिज ने उससे इत्तेफाक किया, मगर उसे यहाँ से अपनी गैर मौजूदगी के सिलसिले में एतमाद में लेना पड़ेगा। ये कहते ही दूसरे मुहाफिज ने मुड़कर उस नामर्द शख्स को पुकारा। थोड़े से इनाम के लालच में नामर्द मुहाफिज उस पर आमादा हो गया कि उन दोनों की वहां से गैर मौजूदगी को राज में रखेगा, और आखिरकार सारा मामला तय हो गया। वो दोनों मुझे उसी वक्त अपने साथ वादी सबद ले जाना चाहते थे और ये खिलाफे तवक्का सूरत हाल मेरे लिए तशवीश का सबब थी। अब तक मैं उन दोनों की गुफ्तगू पूरे सब्र तहम्मुल के साथ सुनती रही थी और मदाखलत नहीं की, मगर ऐसा मजीद मुमकिन नहीं था। सुनो, मैंने उन्हें मुखातब किया। मैं दिन भर घोड़े की पीठ पर मैंने सफर किया है और बहुत थक गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझे सरदार सियान के पास ले जाना चाहते हो और इसी वक्त सफर का इरादा रखते हो, मगर मैं मजीद सफर करने के काबिल नहीं हूँ। सफर नहीं करेगी तो फिर सरदारों के सरदार सियान की बीवी कैसे बनेगी? पहले मुआफिज ने अपनी दानस्त में मुझे गोया लालच दिया।
तुम लोग रात को मुझे आराम करने दो, सुबह मैं सफर के काबिल हो जाऊंगी। मैं बोली, और मैं किसी भी तरह इतना वक्त वहीं गुजार देना चाहती थी कि महापुजारी और अहरस लश्कर तक पहुंच जाएं और फिर इस बस्ती पर हमला कर दें। इस बस्ती पर अब हमला करना यूं भी जरूरी हो गया कि बहरहाल ये बस्ती सियान ही के ज़ेरे नगी थी। देख ए लड़की, जिद ना कर और अपनी मर्जी से चली चल, वरना हम तुझे इस पर मजबूर भी कर सकते हैं, पहले मुहाफिज ने मुझे धमकी दी। सुन ए शख्स, जब सरदार सियान की मैं बीवी बन जाऊंगी और यूं मेरा मर्तबा बुलंद हो जाएगा तो मैं तुझे याद रखूंगी, तुझे सरदार सियान की नजरों में ऊंचा कर दूंगी, तुझे उससे इनामों मराआत भी दिलवाऊंगी। क्या तू सियान की नजरों में ऊंचा होना नहीं चाहता? और मैंने भी उसे लालच दिया। वो बड़ा काया निकला और किसी भी तरह मेरी बातों में नहीं आया और उसका नतीजा यही हुआ कि मजबूरन मुझे उन दोनों के साथ राजी बेरजा चलने पर आमादा होना पड़ा। और मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि अगर उनके साथ खुशी खुशी चलने पर आमादगी का इजहार ना किया तो वो मुझे बांध कर ले जाएंगे। और उन्होंने मुझे दरमियान में ले लिया और दाएं बाएं अपने घोड़े दौड़ाने लगे। और मेरे दिल में उम्मीद की आखिरी चिराग यही रोशन था कि मेरे लश्कर वालों में से किसी की नजर मुझ पर पड़ जाए। और मेरा ख्याल था कि वो वादी सबस तक पहुंचने के लिए वही रास्ता इख्तियार करेंगे जो कभी उस बस्ती तक आने के लिए महापुजारी ने इख्तियार किया था, और उसके लिए से दर्रे से गुजर कर पहाड़ी चश्मे की तरफ जाना पड़ता। और चश्मे के किनारे पर ही मेरा लश्कर पड़ाव डाले हुए था और मौजूदा हालात में उन लोगों को मोहतात और चौकन्ना हो जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन था कि उन लोगों की नजरों में आए बगैर उस रास्ते से गुजरना मुमकिन नहीं, मगर इस वक्त उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया जब उन दोनों ने दर्रे का रुख नहीं किया। और जल्द ही मुझे उन दोनों की गुफ्तगू से यह मालूम हो गया कि वादी सबस तक पहुंचने के लिए उन्होंने रास्ता बदल दिया था, और रास्ता तवील तो था मगर उनके नजदीक महफूज था। वो तेजी से घोड़े भगाते रहे और मैं भी उनके साथ अपना घोड़ा दौड़ाती रही। अभी हमने ज्यादा फासला तय नहीं किया था कि काफी दूर से धमाकों की आवाजें आने लगी और आवाजें उसी तरफ से आ रही थी जिधर से हम आ रहे थे। यूं लगता है जैसे किसी ने बस्ती पर हमला कर दिया है। उनमें से एक मुहाफिज ने अजहारे ख्याल किया। हाँ, यही मालूम होता है, दूसरे मुहाफिज ने पहले की तायद में कहा। अच्छा हुआ कि हम इस लड़की को लेकर पहले ही वहां से निकल आए, वरना हमला होने की सूरत में हमारे लिए इसे छुपा कर रखना मुश्किल हो जाता और ये नायब सरदार वाहब की नजर में आ जाती। मगर बस्ती पर शब खून मारने वाला कौन हो सकता है? ये कार्रवाई मकतूल सरदार आशिर के बेटे नजार ही की हो सकती है जो बचकर निकल गया था। 2 साल पहले भी तो नजार ही ने हमारी बस्ती पर हमला किया था। सुना है कि अब वो छोटे छोटे कबीलों को अपने साथ मिलाकर बहुत ताकत पकड़ गया है। हर चंद के लोगों की क्यास अराई कतई गल थी, मगर उससे मेरे इल्म में ये एक नई बात आई कि इस इलाके में सरदार सियान का कोई हरीफ भी है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। आइंदा किसी भी मौका पर नजार मेरे काम आ सकता था। महापुजारी ने इस बस्ती पर हमला कर दिया मगर उसे देर हो चुकी थी। अब उसके लिए मेरी बाजियाबी मुमकिन नहीं रही और मैं तो इसी बस्ती में थी ही नहीं, फिर भला वो मुझे कैसे बाजियाब करता। हाँ, ये मुमकिन था कि उस बस्ती की फतह आइंदा कामयाबी की राह में संगे मील साबित होती, लेकिन लश्कर से मेरा बिछड़ जाना खुद मेरे लिए किसी सानहे से कम नहीं था और यूं वो फतह बेमैनी होकर रह गई। यकीनन मुझे तलाश किए बगैर महापुजारी कोई अगला कदम ना उठाता। मौजूदा सूरत हाल मेरी समझ में नहीं आई कि क्या करूं और क्या ना करूं। वो दोनों मुझे इस तरह अपने दरमियान में लिए हुए थे कि उनसे बचलना मुश्किल नजर आ रहा था और मेरी ख्वाहिश थी कि आशिर की बस्ती से इतनी दूर ना निकल जाऊं कि वापसी मुमकिन ना रहे। और धमाकों की आवाजें भी अब मालूम होते होते गुम हो गई थी और मुझे अब तक वो मौका नहीं मिल सका मुझे जिसकी तलाश थी। और ये मेरे हक में बेहतर हुआ था कि मसाहालहाना रवैये की वजह से उन्होंने मुझे गैर मसला करना जरूरी नहीं समझा था, या वो मुझ पर ज्यादा सख्ती के हक में नहीं थे और मेरे साथ नरमी की वजह सिर्फ यही हो सकती थी कि उनकी दानस्त में आइंदा मैं सरदार सियान की बीवी बनकर उनके किसी काम आ सकती थी। घोड़े दौड़ते रहे और उनमें उनसे भी तेज रफ्तारी के साथ मेरा जहन काम करता रहा। मुझे आशिर की बस्ती बहुत पीछे रह जाने का पूरा एहसास था।
लेकिन इसके बावजूद मैं किसी मुमकिन मौका की तलाश में थी और ये मौका मुझे खुद कुदरत ने फराहम कर दिया। मेरा घोड़ा दिन भर सफर करने की वजह से खासा थका हुआ था। रास्ते में एक बड़े से पत्थर की ठोकर लगने से वो अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और घोड़े ने जैसे ही ठोकर खाई मैंने उसकी पूंछ से छलांग लगा दी। मैं दाएं जानब ढलवान पर गिरी और लड़कती चली गई और फिर उसी वक्त रुकी जब एक बड़ी सी चट्टान मेरी राह में हायल हो गई। उन दोनों मुहाफिजों ने भी यकीनन मेरे घोड़े को ठोकर खाते देखा था, क्योंकि वो मेरे साथ साथ ही चल रहे थे, लेकिन घोड़े की पूंछ से उछलकर मैं किधर गई ये शायद वो नहीं देख सके थे और अंधेरे में ये मुमकिन भी नहीं था। नसीब से वो मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके हाथों में मशलें रोशन थी और उन्होंने अपने घोड़े रोक लिए। मैंने अब चट्टान की आड़ ले ली और उनमें से एक का निशाना ले लिया। इसके सिवा अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि उनसे जान छुड़ाने के लिए उन्हें अपने रास्ते से हटा दूं। और जैसे ही मैंने निशाना लेकर फायर किया, ऐन उसी लम्हे वो मुहाफिज अपनी जगह से आगे बढ़ गया और यूं मेरी चलाई हुई गोली रायगां चली गई। उससे एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो दोनों चकन्ना हो गए और उन दोनों को ही मैंने घोड़ों की पूंछ से छलांग लगाते देखा। इसी दौरान मैंने दूसरा फायर कर दिया और मुझे एक चीख सुनाई दी। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती थी कि मेरी गोली उस शख्स का काम तमाम कर दिया था या वो महज जख्मी हुआ। घोड़ों से छलांग लगाते ही उन्होंने अपने हाथों से मशलें फेंक दी और चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मैंने अपनी तरफ एक शोला लपकते देखा और फिजा धमाके से गूंज उठी। मैंने उन पर 2 गोलियां चलाई थी और उन्होंने यकीनन ये अंदाजा कर लिया कि फायर किस सिमत से हुए हैं और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे चट्टान की आड़ मुयस्सर आ गई, वरना कोई भूली भटकी गोली मेरा किस्सा पाक कर देती। मुझ पर एक मरतबा फिर फायर किया गया और इस मरतबा मैंने भी सिमत का अंदाजा करके जवाबी फायर कर दिया और रात के अंधेरे में 2 मसला दुश्मन मेरी जान के दर पे थे। इस मार का आराई का क्या नतीजा निकलता मुझे नहीं मालूम। हम एक दूसरे पर फायर करते रहे, मगर इस अरसे में मुझे ये अंदाजा जरूर हो गया कि उनमें से एक शख्स की चीख मैंने सुनी थी, या तो वो मर चुका है या फिर शदीद जख्मी। जवाबी फायर सिर्फ एक ही शख्स कर रहा था और वो भी शायद अब आड़ में था। कुछ देर बाद मेरे जहन में यह ख्याल आया कि इस तरह बात नहीं बनेगी, मुझे इस शख्स को ठिकाने लगाने का कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। और फिर मुझे खोखले पहाड़ों वाला वाकया याद आ गया। धोखा, मैं ज़हर लब बड़बड़ाई और मैं उसे धोखा देकर ही अपने रास्ते से हटा सकती थी। और फिर मैंने उसकी तरफ फायर किया और जवाब में उसने भी गोली चलाई और उसकी इसी के साथ मैं पूरी कुव्वत से चीख उठी और देर तक मेरे चीख की बाज़गुश्त सुनाई देती रही और उसके बाद कई बार गोली चलाई गई, मगर मैंने जवाबी फायर से ग्रेज किया और आखिरकार उस शख्स को धोखा देने में कामयाब हो ही गई। और मैंने उसे कुछ फासले पर पड़ी हुई मशल उठाते देखा, लेकिन जल्दबाजी से काम नहीं लिया और दम सादे अपनी जगह बेहसो हरकत पड़ी रही। वो मशल हाथ में उठाए नशीब में उतरने लगा। उसके बाएं हाथ में मशल थी और दाएं हाथ में उसने राइफल थाम रखी थी। उसका चेहरा मुझे वाज़े नजर आ रहा था, वो पहला मुहाफिज ही था। शायद वो मेरी लाश देखकर ये यकीन कर लेना चाहता था कि मैं मर चुकी हूँ, या अगर जख्मी होकर बेहोश हो गई हूँ तो होश में आने से पहले मुझे बांध लेना चाहता था। उसके और मेरे दरमियान जब चंद नेज़ों का फासला रह गया तो मैंने उसके सीने का निशाना लेकर फायर कर दिया और वो उछल कर गिरा और फिर नशीब में लड़कता चला गया। जिस्म उछलने के साथ साथ उसके हाथों से राइफल और मशल दोनों ही छूट गई। मैं चट्टान की आड़ लेकर निकल आई और नशीब में लड़कती हुई मशल को एक पत्थर से टकराकर रुकते देखा और मैं एहतियात के साथ नशीब में उस जगह पहुंच गई और मशल उठा ली। खासे नीचे जहां ढलान का इख्तिताम था वहां मैंने उस शख्स के बेहिस्सो हरकत जिस्म को देखा और कुछ दूर ही से लौट आई। मैंने एक लाश देखकर ये इत्मीनान कर लिया कि मेरा एक दुश्मन खत्म हो चुका है। अब मुझे दूसरी लाश की तलाश थी। ऊपर पहुंचने के बाद मुझे अपना दूसरा दुश्मन भी नजर आया। वो ऊंधा पड़ा था और उसके इर्द गिर्द खून फैला हुआ था। मैंने झुककर उसे सीधा किया और सीने के खफीफ से जीरो बम को देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो अभी मरा नहीं, जिंदा था। उसका सांस बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ज्यादा खून बह जाने की वजह से अब उसका बचना भी मुश्किल था।
मैं उसे मरने से नहीं बचा सकी, सो सीधी खड़ी हो गई और तीनों घोड़ों में से एक भी मुझे आसपास नजर नहीं आया। वो शायद फायरिंग से बदक कर किसी तरफ दौड़ गए थे और किसी सवारी के बगैर इस वीराने से किसी तरफ जाना मेरे लिए नामुमकिन ही था। इन तीनों घोड़ों में से किसी एक को तलाश करना मेरे लिए बेहद जरूरी था और इसका अंदाजा ही नहीं था कि मुझे यह मसला भी दरपेश हो सकता है। कुदरत ने मुझे मेरे दोनों मसला दुश्मनों पर गलबा दे दिया था, लेकिन सवारी ना होने की वजह से मैं कतई बेबस होकर रह गई। उन्हें कहीं आस पास ही होना चाहिए, ये सोचकर मैं घोड़ों की तलाश में मशल लिए एक तरफ निकल दी और इस सिमत का खासा फासला तय करने के बावजूद जब मुझे कामयाबी ना हुई तो पलटकर दूसरी सिमत का रुख किया। तकरीबन मजीद एक पहर रात गुजरने के बाद मुझे कामयाबी नसीब हुई, मगर अब मैं सिमतें भूल चुकी थी और मुझे कतई इस सिमत का अंदाजा ही नहीं रहा कि जिधर आशिर की बस्ती थी। मैं तो अब उस जगह से भी वापस नहीं पहुंच सकती थी जहां से पैदल सफर का आगाज किया था और आखिरकार मैं उस घोड़े की पुश्त पर सवार हो गई जिसे बदवकत तमाम तलाश किया था। बेसिमत सफर मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी था। मेरे जहन में ये अंदाजा भी मौजूद था कि भटकती हुई कहीं अपने दुश्मन के इलाके में दाखिल ना हो जाऊं या किसी और मुश्किल में गिरफ्तार ना हो जाऊं। सनफे नादर से ताल्लुक होना मेरे लिए कदम कदम पर नई मुश्किलात पैदा कर देता है और उस पर मेरी नौजवानी और हुस्न ने और भी क़यामत ढा रखी थी। अगर मैं वाजबी शक्ल सूरत की कोई लड़की होती तो शायद मुझे इस कदर दुश्वारियां पेश ना आती। उस रात का बकिया हिस्सा एक बेसिमतो बेमंजर सफर में गुजर गया और मैंने दानिस्ता घोड़े को तेज नहीं दौड़ाया ताकि वो ज्यादा ना थक जाए, क्योंकि मुझे खबर नहीं थी कि कब तक ये सफर जारी रहता। सुबह के आसार नमूदार हुए तो मैंने मशल फेंक दी। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही थी। मैं जहां थी वहां मुझे दूर तक छोटी बड़ी चट्टानों के सिलसिले में फैले हुए नजर आ रहे थे और दूर तक किसी आबादी का नामो निशान नहीं था। कुछ देर घोड़े को सस्ताने और अपने अकड़े हुए जिस्म को आराम देने की खातिर मैं घोड़े से उतर गई। जरा फासले पर एक बड़ा सा पत्थर नजर आया तो मैं उस पर जाकर दम लेने को बैठ गई। अब मुझे सही अंदाजा हो रहा था कि जो लोग अपने काफिले से बिछड़ जाते हैं उनकी क्या हालत होती है। सूरज पूरी तरह निकल आया और धूप हर तरफ फैल गई तो फिजा में धीरे धीरे तमाज़त बढ़ने लगी। मैं सोचने लगी कि मुझे इस बेसाया जगह से चल देना चाहिए, मगर किस तरफ, इस सवाल पर मज़ीद सोचने की जरूरत थी। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में रोशनी सी हो गई और मुझे याद आया कि जब मेरा लश्कर आशिर की बस्ती के करीब पहुंचा था तो सूरज पहले दर्रे की दूसरी जानब गरूब हो रहा था। इसका वादा मतलब ये था कि आशिर की बस्ती मगरिब सीमत में थी। गोया जिधर से सूरज तुलू हो रहा है मुझे उसकी मुखालफ सीमत में अपना सफर जारी रखना चाहिए और इसी सीमत आशिर की बस्ती के मिलने या होने का अमकान था। मैंने सोचा और कुदरत ने सिमतों के तयन का बंदोबस्त बड़ी वाज़ा अलामतों के जरिए किया है जिनमें से किसी भूल चूक का अमकान नहीं। सिमत खो जाने या भूल जाने के बावजूद एक बार फिर मुझे सिमत सफर मिल गई और इससे मेरा हौसला बढ़ गया और मैं उठ खड़ी हुई। घोड़े पर सवार होकर मैंने सूरज की मुखालफ सिमत सफर का आगाज कर दिया। अब मैंने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी और उम्मीद किए कि नमूदार होने से मेरे अंदर जोश पैदा हो गया था। उसी सिमत सफर करते करते मेरे राह में एक पहाड़ी चश्मा हायल हो गया। अब सुबह से दोपहर हो चुकी थी और मैं चश्मे के किनारे रुक गई। मैं भी प्यासी थी और मेरा घोड़ा भी। चश्मे के किनारे हल्की सी रोईदगी भी थी और मेरी भूख तो खैर नहीं मिट सकी। हाँ, घोड़े का कुछ भला हो सकता था और मैंने इसीलिए अपनी ब्यास को घोड़े को कुछ देर के लिए चरने छोड़ दिया और मेरा सामान्य सफर में हथियारों के अलावा एक छोटा सा मशकीज़ा भी था जो खाली हो चुका था। वो मशकीज़ा मेरी कमर से बंधा हुआ था और मैंने उसे अपने कमर से खोलकर उसमें पानी भर लिया। अभी मैं मशकीज़े में पानी भरकर फारिग हुई थी कि सामने से अचानक एक घोड़सवार को चश्मे की तरफ आते देखा और मैं ठठक गई। वो नवार्द घोड़सवार मेरे लिए किसी नई मुसीबत का पेश खैमा भी साबित हो सकता था। इसी ख्याल के तहत मैंने तेजी के साथ शाने पर लटकी हुई राइफल उतारकर हाथ में ले ली। वो घोड़सवार गैर मसला नहीं था और मुझे राइफल सीधी करते देखकर उसने भी राइफल संभालने में देर नहीं की। घोड़ा दौड़ाता हुआ वो चश्मे के दूसरे किनारे पर आकर रुक गया और सूरत हाल ये थी कि उसकी राइफल मेरी तरफ उठी हुई थी और मेरी राइफल का रुख उसकी जानिब था।
गठीले जिस्म का वो घुड़सवार चुभती नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, कौन है तू? एक मुसाफिर, मैंने जवाब दिया और फिर उससे सवाल किया कि तू कौन है? मैं भी तेरी ही तरह सफर में हूँ, इसलिए मुझे भी तू एक मुसाफिर ही समझ सकती है। घुड़सवार का लहजा मैनीखेज था। वो यकीनन मेरे बारे में कुछ जानने से पहले अपने मुतल्लिक बताना नहीं चाहता था। वो पहला अजनबी शख्स था जिसकी नजरें मेरे जिस्म के मखसूस हिस्सों पर मरकूज नहीं थी, या फिर वो अपने दिली जज्बात को पोशीदा रखने पर कादर था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरों के तासरात और हरकतों सकनात से उनके अंदर का हाल मालूम नहीं होता। वो अजनबी शायद ऐसे ही लोगों में से था, वरना ये कैसे मुमकिन था कि मेरे क़यामत खेज हुस्न का उस पर कोई असर ना होता। तो ए मुसाफिर, अपनी राह ले, मैंने उसकी बात सुनकर कहा। हाँ, अगर तुझे नायब सरदार वाहबा की बस्ती का रास्ता मालूम हो तो मुझे जरूर बता दे, क्योंकि मैं राह भटक गई हूँ। दानिस्ता मैंने सरदार आशिर का नाम लेने से गुरेज किया था। मालूम नहीं क्यों वो अजनबी वाहब का नाम सुनकर चौंक उठा और फिर कहने लगा, तो मुझसे मदद भी मांगती है और मेरे सीने की तरफ अपनी राइफल की नाल भी उठा रखी है। उसकी आवाज में चुभन थी। अजीब है लड़की तू। और मैंने उसे एतमाद में लेने की खातर अपनी राइफल की नाल झुकाते हुए कहा, और क्या तूने भी मुझ पर राइफल नहीं तान रखी? ये ले। उसने राइफल अपने शाने पर लटका ली और फिर घोड़े को एड़ लगाकर चश्मे में उतर गया। चश्मा उस जगह ज्यादा गहरा नहीं था। चश्मा अबूर करके वो मेरी जानब आ गया और घोड़े से उतरते हुए बोला, तू वाहब की बस्ती क्यों जाना चाहती है? क्या तुझे इसका एहसास नहीं कि तू कितनी हसीन है? तो इससे क्या हुआ? मैं जानकर अनजान बन गई, हालांकि उसका इशारा समझ गई थी। उससे ये होगा कि तुझे वाहब की हवेली में कैद कर दिया जाएगा और फिर तो उसी वक्त वहां से निकल सकेगी जब तेरे सुर्ख रखसारों पर जर्दी फैल जाएगी और तेरा हुस्न मानद पड़ जाएगा और तेरी जवानी ढल जाएगी। वो तुझे किसी रसदार फल की तरह नचोड़ने के बाद अपनी हवेली से बाहर फेंक देगा। वो बड़ी ही खबीस रूह है, तू शायद उससे वाकिफ नहीं, वरना कभी उधर जाने को ना कहती। अजनबी शख्स का अंदाज ऐसा था जैसे मुझे किसी खतरे से आगाह कर रहा हो, और वो मेरे करीब ही बैठ गया था। है अजनबी, क्या तू मुझे खौफजदा करना चाहता है? मैं बोली, मुझे बस ये बता दे कि तू वाहब की बस्ती का रास्ता जानता है या नहीं। जानता हूँ, उसने जवाब दिया, मगर तुझे रास्ता बताकर या वहां तक तेरी रहनुमाई करके तुझसे दुश्मनी नहीं करूंगा। बात यह है ऐ मेरे अजनबी हमदर्द कि वाहब की बस्ती के बाहर जो पहाड़ी चश्मा है, वहां मेरा काफिला पड़ाव डाले हुए है और मुझे अपने काफिले तक पहुंचना है। ना मैंने वाहब को देखा है और ना उसे जानती हूँ और ना मिलने की ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने नरमी से उस अजनबी को समझाया, तेरा काफिला वहां पड़ाव डाले हुए है और तू यहाँ इतनी दूर भटक रही है। अजनबी के लहजे में बेयकीनी थी, और ये किस तरह मुमकिन है? दरअसल मैं गिरदो नवा का जायजा लेने के लिए कल शाम एक तरफ निकल गई थी, और जैसे ही मैंने चश्मे के करीब मौजूद पहाड़ी दर्रा अबूर किया कि देखूं दूसरी तरफ क्या है, मुझे मशल बदस्त घोड़सवारों ने घेर लिया और उस अजनबी को हकीकत से करीब तर कहानी सुना रही थी ताकि उसे मेरे बयान पर झूठ का गुमान ना हो। और मैंने अपनी बात जारी रखते हुए उसे मजीद बताया, और फिर उनमें से दो मुझे जबरदस्ती अपने साथ किसी और बस्ती की तरफ ले जाने लगी ताकि वहां के सरदार को खुश करने और उससे इनाम पाने के बाद मुझे उसके पास छोड़ आए। और मैंने दानिस्ता, वादी सबद और सियान का जिक्र ना किया और फिर बात को मुख्तसर कर दिया। रास्ते में एक जगह मुझे फरार होने का मौका मिल गया और मैंने उससे फायदा उठाया। क्या उन दोनों ने तेरा पीछा नहीं किया और उन्होंने तुझे आसानी से फरार हो जाने दिया? अजनबी की आवाज से अब भी बेयकीनी झलक रही थी। पीछा क्यों ना किया, मगर मैं उनके हत्थे नहीं चढ़ सकी। रात का अंधेरा मेरा मुआवन साबित हुआ और मैंने अंधेरे को जवाब बनाया। उस अजनबी को मैं ये बताना नहीं चाहती थी कि वो दोनों मेरे हाथों मारे गए हूँ। मेरी बात सुनकर अजनबी ने गहरा सांस लिया और फिर बोला, यहाँ से शुमाल की तरफ एक छोटी सी बस्ती है जहाँ मेरी बहन रहती है। मुझे खबरें मिली है कि वह बहुत बीमार है। मैं इस वक्त उसी को देखने जा रहा था और हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ से वाहब की बस्ती बहुत दूर है। तू मेरी रहनुमाई के बगैर वहां तक नहीं पहुंच सकेगी। तुझे वहां तक पहुंचाने की सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर तू इस बात पर राजी हो जाए तो मेरे साथ मेरी बहन की बस्ती तक चल। यहाँ से वह बस्ती बस एक दोपहर के फासले पर है और शाम होते होते हम वहां पहुंच जाएंगे। रात भर मैं अपनी बहन के घर रहकर
اس کی عیادت کرنے کے بعد किसी न किसी पहर तेरे साथ वाहब की बस्ती चला जाऊंगा और फिर तुझे वहां पहुंचाकर अपनी बस्ती की तरफ लौट जाऊंगा। बोल क्या कहती है, चलना है तुझे मेरे पास? और मैं सोच में पड़ गई। कुदरत ने मुझे इस अजनबी के रूप में आशिर की बस्ती तक पहुंचने के लिए एक राहबर अता कर दिया था, मगर उस राहबर की भी एक मजबूरी थी। वो बराह रास्त मुझे मेरी मतलूबा मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता था, और मैं उसे ये भी नहीं कह सकती कि पहले वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। यही बहुत था कि अपनी बहन की इयादत करने के बाद उसने मुझे आशिर की बस्ती तक पहुंचाने का वादा कर लिया, और मेरे तदबदब का एक बड़ा सबब यह भी था कि महापुजारी आखिर कब तक मेरा वहां वापसी का इंतजार करता। जरूरी नहीं कि वह मेरे इंतजार में वहीं रुका रहता। एक अमकान यह भी था कि वहां पर फतह पाने के बाद वो मशल बरादर मुहाफिजों से मेरे बारे में पूछ गुछ करता और उसे हकीकत का इल्म हो जाता। महापुजारी को जब ये मालूम होता कि दोनों मुहाफिज मुझे अपने साथ लेकर वादी सबस की तरफ रवाना हो चुके हैं, तो फिर उसके वहां मजीद रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फौरी तौर पर वो मेरी बाजियाबी के लिए वादी सबस का रुख करता, मगर ये सब मेरी ही क्यासात ही थी। जरूरी नहीं कि सब कुछ उसी तरह पेश आता जैसा मैंने सोचा था। क्या खबर जंग के दौरान में मशल बदस्ता मारा जाता या फरार हो जाता, या फिर कोई और ही सूरत पेश आती। और फिर भी ये भी था कि महापुजारी मेरी गुमशुदगी के बाद खामोश ना बैठता। तू क्या सोचने लगी ऐ लड़की? अजनबी ने मुझे ख्यालों में खोया हुआ देखकर मुखातर किया और मैं चौंक उठी। मैं ज्यादा तेरे साथ यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि सूरज डूबने से पहले अपनी बहन तक पहुंचना चाहता हूं। तू जल्द कोई फैसला कर ले, तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, वरना मैं चलता हूं। कुछ देर और ठहर जा, मैं अभी तुझे जवाब देती हूं। और मैंने सोचने के लिए कुछ और वक्त मांगा तो तूने सब कुछ तो बता दिया, मगर अपना नाम नहीं बताया। अजनबी बोला, वैसे तू कहे तो मैंने ही अपना नाम कब बताया है? तो सुन, मेरा नाम तरीर है, और ए तरीर, मैं आतून हूँ। मैंने भी उसे अपना तारफ करा दिया। आतून? उसने ज़ैर लब मेरा नाम लिया। अच्छा नाम है, और तेरा नाम भी ए तरीर। अखलाकन मैंने भी तारीफ कर दी। मजीद कुछ देर गौर व फिक्र के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची कि मुझे तरीर के साथ रवाना हो जाना चाहिए। यहाँ बेमकसद रुके रहना फजूल ही था, या अपनी मंजिल की तलाश में भटकना भी मौजूदा हालात में बेमानी था, और इस बात का अमकान ना होने के बराबर था कि मैं भटकती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाती। ऐ तरीर, मैं तेरे साथ चलने पर राजी हूँ। और मैंने उसे अपना फैसला सुना दिया, और मेरे इस फैसले की बड़ी वजह तरीर का रवैया भी था। आम मर्दों की तरह उसने मुझे ललचाई हुई नजरों से अब तक नहीं देखा था। और तेरे पास खाने को तो कुछ भी ना होगा आतून? उसने मुझसे दरियाफत किया। हाँ, कुछ नहीं है, और तू यकीनन भूखी भी होगी। हाँ, भूखी भी हूँ। कल शाम मैंने अपने काफिले वालों के साथ खाना खाया था, और मैंने उससे ये बात नहीं छुपाई। मैं तो अपने लिए खाना लेकर चला था, मगर तू भूखी है तो दोनों आधा आधा खा लेंगे, तरीर ने खलूस के साथ कहा। नहीं, मैंने इनकार कर दिया। तू भला मेरी खातर आधा पेट क्यों खाए? इस क्यों का मैं तुझे क्या जवाब दे सकता हूँ? अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्यों तुझे अपने साथ अपनी बहन के घर ले जाऊं, और फिर क्यों तुझे वाहब की बस्ती तक पहुंचाऊं? बोल, है ना ठीक बात? क्यों, फिर क्यों? वो ये कहते हुए आहिस्ता से हंस दिया और उठकर अपने घोड़े की पोशत से एक पोटली खोल ली, और दोबारा मेरे करीब आकर बैठने के बाद उसने कहा, चल आ, जो कुछ देवताओं ने दिया है उस पर शुक्र करते हैं। और मेरा खाना पीना बचपन ही से अलग था। उसके साथ खाने में शरीक होना या एक साथ खाना खाना खतरनाक था, और मैं इसलिए बोली, थोड़ा सा खाना मुझे अलग दे दे। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, मगर कुछ बोला नहीं, और मैंने जो कुछ कहा था उस पर अमल कर दिया। तरीर ने मेरे मना करने के बावजूद अपना आधा खाना मेरी तरफ सरका दिया था, और कुदरत भी अपनी मखलूक को किस किस तरह रिज़्क पहुंचाती है मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वीराने में कुछ खाने को मिल जाएगा, मगर कुदरत ने इसका बंदोबस्त कर दिया था। गुज़श्ता सारा दिन सफर में गुजरा, तो फिर सारी रात और आधा दिन इसी हालत में कटा था कि मुझे आराम नहीं मिला। खाना खाने के बाद इसीलिए मेरी आंखें बंद होने लगी, और मेरा जी चाह रहा था कि गहरी नींद सो जाऊं। अब चल उठ जा ए अतून, तरीर ने मुझे मुखातब किया, वरना देर हो जाएगी और हम शाम से पहले अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। कसलमंदी दूर करने और नींद भंगाने के लिए मैंने अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और मेरी आंखें जल रही थीं। मुसलसल सफर ने मुझे बहुत थका दिया था। जरा सी देर के बाद मैं तरीर के साथ रवाना हो गई।
कुछ दूर चलकर उसने अपना रुख शमाल की तरफ कर लिया। वक्त का जबर मुझे कहीं से कहीं ले जा रहा था और मेरे इख्तियार में भी नहीं था। मैं किसी बर्ग आवारा की तरह हवा के रुख पर उड़ी जा रही थी। कहीं भी रुके बगैर हमारा सफर जारी रहा और हम आखिरकार एक पहाड़ी के दामन में आबाद बस्ती तक पहुंच गए। उस बस्ती में दाखिल होते ही मेरे दिल में एक अंदेशा उभरा कि कहीं ये बस्ती भी सियान की ममलकत ना हो, और इसी अंदेशे के तहत मैंने तरीर से पूछा कि यहाँ का सरदार कौन है ए तरीर, क्या करेगी तू ये मालूम करके? खिलाफ तवक्का उसने चौंक कर कहा, बस यूं ही पूछ रही हूँ, क्या तुझे कोई एतराज है बताने में? मैं बोली और तरीर के चेहरे का जायजा लेने लगी। इस बस्ती का बज़ाहिर सरदार तो अव्वल है, मगर वो कुछ कहते कहते रुक गया। मगर क्या, बता। कुछ झिझकते हुए तरीर ने बता ही दिया कि असल सरदार नज़ार है। अव्वल तो नज़ार का नायब समझ सकती है। ये बस्ती चंद ही बरस पहले नज़ार ने बसाई है, और तुझे मालूम है ये नज़ार कौन है? तरीर ने सवाल करके खुद ही उसका जवाब भी दे दिया। ये उसी सरदार आशिर का बहादुर बेटा है जिसकी बस्ती पर अब जुल्म जालिम सरदार सयान ने कब्जा कर लिया है और वहां अपने एक नायब वाहब को मुकर्रर कर दिया है। बरसों पहले की बात है कि जब बेरहम संगो दिल सयान के हुक्म पर नेक और दलेर आशिर को खड़ा करके उसकी गर्दन मार दी गई और फिर कटी हुई गर्दन पर दहकता हुआ लोहे का तवा रख दिया गया। आशिर बहादुर का बेटा नज़ार मार काट करता हुआ अपने कुछ जानसार साथियों की मदद से फरार होने में कामयाब हो गया। मैं बड़ी तवज्जो से तरीर की बातें सुन रही थी। नज़ार जो भी कुछ बीती वो मेरे साथ पेश आने वाले वाकयात से बड़ी हद तक ममासलत वाकयात थे, और ये मेरी खुशबख्ती ही थी कि मैं अपने दुश्मन के दुश्मन की बस्ती में आ पहुंची थी। अगर सरदार आशिर का बेटा नज़ार ही इस बस्ती का असल सरदार है तो फिर उसने अव्वल को अपनी जगह क्यों दी, क्यों आगे बिठा रखा है? मैंने तरीर से सवाल किया। उसी वक्त तरीर ने छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए एक घर के सामने अपना घोड़ा रोक दिया और मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा। तेरे सवाल का जवाब मैं फिर दूंगा। आ घोड़े से उतर आ ए खातून, ये मेरी बहन नाशी का घर है। मैं तरीर के साथ घर में दाखिल हुई। 2 बच्चों ने हमारा इस्तकबाल किया। उनमें से एक 10 साल का लड़का था और दूसरी लड़की जो लड़के से छोटी सी। वो दोनों तरीर को देखकर खिल उठे। शायद वो तरीर की बहन ताशी के बच्चे थे। वो हमें साथ लिए एक अंदरूनी कमरे में पहुंचे जहां पर एक बिस्तर पर औरत लेटी हुई थी और चेहरे से ही वो बीमार मालूम हो रही थी। वही तरीर की बहन ताशी थी। तरीर को देखकर वो ताशी उठने लगी। नहीं ए ताशी, तू लेटी रह और बता कि अब तेरा क्या हाल है? तरीर ने कहा। ठीक हूँ बस, ताशी ने बुझी सी आवाज में जवाब दिया और फिर तरीर से अपने माँ बाप का हाल पूछने लगी। तरीर ने ताशी के सवाल का जवाब देकर उससे मेरा तारुफ करा दिया और उसी वक्त बाहर से किसी मर्द के चीखने की आवाज आई। अरे कहाँ मर गए सब, जा देख तेरा बाबा आ गया है, ताशी ने अपने बेटे से कहा। लड़का भागता हुआ बाहर चला गया और जरा ही देर के बाद उस लड़के के साथ एक दराज कद शख्स कमरे में दाखिल हुआ और तरीर उससे गले मिला। वो दराज कद शख्स उसकी बहन का शोहर था। गले मिलकर तरीर ने मेरी तरफ मुड़कर बताया कि ये समीन है और ये बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। दराज कद समीन भूंडे अंदाज में ही हंसा। ये तेरी बीवी ही है और तू उसे अपनी बहन से मिलवाने लाया होगा। नहीं ए समीन, ये एक मुसीबत ज़रा लड़की है, तू गलत समझ रहा है, तरीर ने कहा और फिर मुख्तसरन समीन को मेरे बारे में बताने लगा। इस दौरान में समीन बार बार मेरी तरफ देखता रहा। उसकी नजरों में वही आवारगी थी जो मुझे पसंद थी, ललचाई हुई सी नदीदी और चुभती हुई सी नजरें। समीन मजमूई तौर पर मुझे पसंद नहीं आया था, मगर मुझे उससे क्या लेना था। मैंने अपने दिल को समझा दिया कि मैं उसके घर में एक ही रात तो गुजारना है। इस घर में बस 2 ही कमरे थे। एक कमरे में तरीर के और चेहरे सोने का बंदोबस्त कर दिया गया। हाथ मुंह धोकर हमने खाना खाया और खाना खाते हुए एक हादसा होते होते रह गया। मैंने पानी पीकर बर्तन रखा ही था कि तरीर की भांजी ने बर्तन में बचा हुआ पानी पीने के लिए बर्तन उठा लिया और उसी वक्त मैंने खाने की तरफ मतवज्जा थी। उधर उस बच्ची ने पानी का बर्तन अपने मुंह से लगाने के लिए उठाया और उधर मैंने झपट कर बर्तन उसके हाथ से छीन लिया। बच्ची ना जाने क्या समझी कि एकदम रोने लगी। क्या हुआ है ए खातून, तूने बर्तन क्यों छीन लिया? तरीर ने हैरान सा होकर मुझसे पूछा। समीन ने जो साथ खाना खा रहा था हैरत से मुझे देखने लगा। मुझे ऐसे ही किसी सवाल की तवक्का थी, मैंने इसलिए बिला झिझक जवाब दिया। मुझे एक ऐसी ही खतरनाक बीमारी है कि कोई दूसरा शख्स
मेरा जूठा पानी पी ले तो उसे भी वो बीमारी लग सकती है। इस मासूम बच्ची को मैंने इसीलिए अपना जूठा पानी नहीं पीने दिया। ऐ तरीर, तुझे शायद याद होगा कि रास्ते में भी मैं तेरे साथ खाने में शरीक नहीं हुई और इस वक्त भी अपने बर्तन में मैंने तुझसे अलग ही खाना मांगा है और इसकी वजह वही खतरनाक बीमारी है और मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे को मुझसे ये बीमारी लग जाए। बच्ची को एक और बर्तन पानी का देकर तहरीर मुझसे बोला, ऐ आतून, बज़ाहिर तो तू सेहतमंद तंदुरुस्त ही लगती है, हाँ मगर अक्सर बस अचानक ही मेरा मुंह, नाक और कानों से खून बहने लगता है और फिर मैं खून काफी दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। मैंने बात बनाई और सोचा कि तरीर का और मेरा साथ ही कितना है, मेरा झूठ उस पर खुल जाएगा। रात को सोने से पहले समीन भी उसी कमरे में आ गया जहां मैं और तरीर थे। मैं समझ गई कि समीन का मकसद आंखें सेकने के सिवा कुछ और नहीं था और मैं इस वक्त तरीर से नज़ार के बारे में बातें करना चाहती थी। पहले तो मैंने सोचा कि समीन वहां से चला जाए तो ये जिक्र छेड़ूं, मगर वो जल्दी टलने वाला नहीं लग रहा था और मैंने इसीलिए अपना वो सवाल दोहराया जिसका जवाब तरीर ने नहीं दिया था। ए अतून, नज़ार ने इसलिए अव्वल को इस बस्ती का सरदार बना रखा है कि अमूमन वो रूपोश रहता है। उसे सियान की तरफ से अपनी जान का खतरा है। सियान ने नसार को गिरफ्तार कराने वाले या उसका सर काट कर लाने वाले के लिए एक बड़ा इनाम मुकर्रर कर रखा है। इसी गरज से उसके जासूस और भेदी हर बस्ती में मौजूद रहते हैं। क्या खबर कब किसी के दिल में लालच आ जाए, इसलिए नज़ार एहतियात से काम लेता है और उसके बारे में कभी किसी को कुछ मालूम नहीं होता कि वो कब कहाँ होगा। तरीर मेरे सवाल का जवाब दे रहा था। इसके अलावा नज़ार की रपोशी का एक सबब यह है कि वो इस तरह रपोश रहकर छोटे छोटे कबीलों को यकजा कर रहा है ताकि एक रोज ये तमाम कबीले अपनी छोटी छोटी रंजिशें भुलाकर सियान के खिलाफ मुतहिद हो जाएं, जो किसी न किसी बहाने उन्हें आपस में लाकर लड़ाकर कमजोर करता रहता है। काश मैं आशिर के इस बहादुर बेटे नज़ार से मिल सकती। गैर इरादी तौर पर यह बात मेरे मुंह से निकल गई। अव्वल अगर तू चाहे तो ऐ खातून, तेरी मुलाकात नज़ार से हो सकती है, तरीर बोला, मगर तू उससे क्यों मिलना चाहती है? जाहिर है मैं तरीर की बात का सही जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए बात बनाई कि उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर मेरा दिल उसके मिलने को चाह रहा है। तेरी ये ख्वाहिश पूरी होना ज्यादा मुश्किल नहीं है आतून। समीन ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया और मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। वो किस तरह? मैंने समीन से सवाल किया। मैं तुझे कल सुबह अव्वल से मिलवा सकता हूँ। तू अगर नज़ार से मुलाकात की कोई मुनासिब वजह अव्वल को बता सकी तो वो तेरी मुलाकात नज़ार से करा देगा, लेकिन सिर्फ ये वजह जो तूने बयान की है काफी नहीं है। और फिर तू कल ही की सुबह तरीर के साथ यहाँ से रवाना होने वाली है। मुमकिन है नज़ार से मिलने के लिए तुझे अव्वल के किसी खास नुमाइंदे के साथ इस बस्ती की कहीं और जाना पड़े या कहीं चंद रोज रुकना पड़े। समीन ने तफसील के साथ मेरे सवाल का जवाब दिया। ये बता ऐ समीन कि अगर मैं फिर कभी यहाँ आऊं तो क्या तू सरदार अव्वल से मुझे मिलवा सकता है? कुछ सोचते हुए मैंने दरियाफत किया। क्यों नहीं, जरूर, समीन ने वादा किया। क्या तेरा फिर कभी इधर आने का इरादा है? ये सवाल करते हुए समीन के लहजे में इश्तियाक था, जैसे वो चाहता हो कि मैं वहां जरूर आऊं। क्या तेरा फिर कभी इधर आने का इरादा है? ये सवाल करते हुए समीन के लहजे में इश्तियाक था, जैसे वो चाहता हो कि मैं वहां जरूर आऊं। अगर तू आई तो मुझे बेहद खुशी होगी कि तू मेरे घर को अपना घर समझ सकती है। तेरे खलूस का शुक्रिया ऐ समीन। मुमकिन है मैं जल्द ही मैं इधर आऊं, मैंने कहा, और बस तू कोई अच्छा सा बहाना नज़ार से मुलाकात के लिए सोच लेगी तो काम बन जाएगा। समीन ने मुझे मशवरा दिया। समीन को खबर नहीं, नज़ार से मुलाकात के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं। अव्वल को इतना ही बता देना काफी होता कि मैं वादी सबज के मकतूल सरदार अशम की बेटी हूँ, उसकी बेटी जिसको कत्ल करके सालम सियान वादी का सबज का सरदार बन बैठा था। और मुझे अगर महापुजारी तक पहुंचने की जल्दी ना होती तो सरदार अव्वल से जरूर मिलती और फिर उसके जरिए नज़ार से मुलाकात की कोई सबील निकल आती। अब तक मेरे इल्म में जो हालात आए थे उनकी रोशनी में सयान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उस पर हाथ डालना अब आसान नहीं रहा। ऐसी सूरत में सयान के एक और बड़े दुश्मन को अपने साथ मिला लेना दानिशमंदी होती। नसार तन तनहा यकीनन अभी इस काबिल नहीं हो सका कि सयान का मुकाबला कर सके। उसके साथ अगर मेरी फौजी कुव्वत भी मिल जाती तो शायद हम दोनों मिलकर सयान को ज़ैर कर सकते।
समीन कभी का उठकर जा चुका था और मुझे तरीर के खराटे भी सुनाई देने लगे और सोचते सोचते मेरे जहन पर भी गनूदगी तारी हो गई और यूं भी मैं बेहद थकी हुई थी और गुज़श्ता रात पल भर को भी नहीं सो सकी, इसलिए जल्द ही नींद से गाफल हो गई। अचानक मुझे दम घुटने का एहसास हुआ तो मेरी आंख खुल गई। मेरे मुंह पर मजबूती से किसी का हाथ जमा हुआ था। उस शख्स ने मुझे अपने बाजू पर उठा रखा था और कमरे से बाहर सेहन में कदम रख रहा था और मैंने उसे पहचान लिया। वो बदनीयत समीन ही था और मुझे हरगिज ये तवक्का नहीं थी कि वो मुझ पर दस्त दराजी की हिम्मत करेगा। अगर तू खामोश रहे तो मैं तेरे मुंह से हाथ हटा लूं। समीन ने मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की। यकीनन वो मेरे मचलने से समझ गया था कि मैं जाग चुकी हूँ। और सुन, मेरे पास खंजर भी है और अगर तूने मुंह से हाथ हटाते ही शोर मचाया तो मैं तुझे ज़िबा भी कर सकता हूँ, उसने धमकी दी। अब वो मुझे सहन के एक गोशे में ले आया। उसने मुझे वहां जमीन पर लेटा दिया और उसी के साथ मेरे मुंह से भी हाथ हटा लिया। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगी और फिर उसके हाथों को झटक दिया जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। देख, खामोशी से मान जा, किसी को कुछ पता ना चलेगा, वरना। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़कर ना जाने कहां से खंजर निकाल लिया। इसका मतलब यह था कि वह महज धमकी नहीं दे रहा था, उसके पास वाकई खंजर मौजूद था। अंदर जिस कमरे में समीन की बीवी नाशी सो रही थी वहां चिराग रोशन था और कमरे का दरवाजा नींद था। वहां से कुछ रोशनी सहन में भी आ रही थी और मुझे इसीलिए नींद तारीकी के बावजूद कुछ न कुछ नजर आ रहा था। ए असमीन, बदकारी से बात आ जा और अपने बच्चों पर रहम कर। मैंने उसे समझाना चाहा। तू क्यों ये कोशिश कर रहा है कि तेरे बच्चे यतीम हो जाएं? तू मुझे धमकी दे रही है, वो गुर्राया किसी दरिंदे की तरह और फिर उसने खंजर की नोक मेरी गर्दन पर रख दी। बोल, मरना चाहती है या चुप रहने पर राजी है? उस पर शैतान सवार था और मुझे ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि वह समझाने बुझाने की हद से आगे निकल चुका है। हवस ने उसे अंधा कर दिया था। राजी हूं, मगर ये खंजर तू मेरी गर्दन से हटा ले, मैंने मसलते वक्त के तहत वो कहा। मुझे मालूम था मुझे कि तू नखरे कर रही है। और उसकी आवाज खुशी से लड़ रही थी और उससे शायद इतनी जल्दी अपनी कामयाबी का यकीन नहीं होगा। उसने खंजर मेरी गर्दन से हटा लिया और मुझे उसी लम्हे का इंतजार था। मैं उछलकर एकदम खड़ी हो गई। उसने मुझे पकड़ना चाहा मगर मैं उसे धक्का देकर उस कमरे की तरफ भागी जहां तरीर सो रहा था और जब तक वो संभल कर मेरे पीछे भागा, मैं कमरे में पहुंचकर अंदर से दरवाजे में कुंडी डाल चुकी थी और मेरे लिए यह भी मुमकिन था कि उसके जिस्म में अपना जहर उतार देती, मगर उस पर मेरा दिल आमादा ना हुआ। मेरी आंखों में उसके दोनों मासूम बच्चों और बीमार बीवी का चेहरा घूम गया था और मैंने इसीलिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो मुमकिन था। अगर वो मुझे भागते हुए दबोच लेता तो फिर मजबूरी थी, मुझे इंतहाई कदम उठाना ही पड़ता। उससे कतई नजर समीन की मौत मेरे लिए कई और मसले भी पैदा कर सकती थी। इस मकान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि मुझे उसके कत्ल करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर ऐसा भी ना होता तो कम से कम आइंदा रोज मेरे तरीर मुझे आशिर की बस्ती ना ले जा पाता। वो अपने बहनोई की आखिरी रसूम अदा किए बगैर मेरे साथ कैसे चल देता। दोबारा सोने के लिए मुझे खासी देर करवटें बदलना पड़ी। बार बार मेरी आंखों में वो मंजर घूम जाता था जब समीन ने मेरी गर्दन पर खंजर की नोक रखी थी। बहरहाल जो कुछ भी हुआ बेहतर ही हुआ। समीन भी रुसवा होने से बच गया और मेरी इज्जत व आबरू भी महफूज रही। तरीर उसी तरह इस दौरान में गहरी नींद सोता रहा जिस तरह पहले सो रहा था। उसे कुछ खबर नहीं हुई कि रात के अंधेरे पर मुझ पर क्या वाकया गुजर चुका है। सुबह जब सारे घर वाले नाश्ता कर रहे थे तो समीन की निगाहें नीचे थीं। वो मुझ पर नजरें मिलाते हुए झटक रहा था और उसकी वजह गुज़श्ता रात पेश आने वाला वाकया ही हो सकता था। उसके दिल में चोट था। नाश्ता करते ही समीन उठ खड़ा हुआ। तरीर ने भी उसकी तकलीद की और समीन से गले मिला। चलते वक्त उसने मुझ पर भी एक उचटती सी नजर डाली और रुखसती के अंदाज में हाथ उठाया और मैंने भी ये सोचकर कि उसको मेरे दरमियान कशीदगी का इल्म ना हो, अखलाकन जवाबी अंदाज में हाथ उठा दिया और समीन ने जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया था। हालांकि अभी हम लोग नाश्ते से फर्क नहीं हुए। मालूम हुआ कि उसे सरदार अव्वल के हवेली पहुंचना था जहां दिन के पहरेदारों को अपने फराइज संभालना थे। समीन सरदार अव्वल की हवेली के पहरेदारों में से एक था।
कुछ दिनों उसे रात के वक्त अपने फराइज अंजाम देना पड़ते थे और कुछ दिनों दिन के वक्त। आजकल वो दिन के वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहा था और रात के मुहावजों को सुबह तब्दील होना था और दूसरे मुहावजों को उनकी जगह संभाल ली थी। समीन को इसीलिए जल्दी थी। ये जानने के बाद मैं समझ गई कि समीन बआसानी मुझे उस बस्ती के सरदार अव्वल से मिलवा सकता था। नाश्ता करते ही मैं भी उसकी रवानगी को उसके साथ तैयार करने लगी। तरीर ने मुझे बताया था कि इस बस्ती के आशिर की बस्ती तक का सफर सारे दिन का है। उसने इसी सबब रास्ते के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया। हमारे घोड़े सोहन में एक जन बंधे हुए थे। ताशी से रुखसत होकर मैं अपने अपने घोड़ों की लगाम थामे हुए तरीर और मैं घर के दरवाजे से निकले ही थे कि मैं तेजी से लपक कर समीन को उधर आधे देखा और चौंक उठी। उसने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। समीन हमारे करीब आया तो उसका सांस तकरीबन फूला हुआ था। उसे मालूम नहीं कैसे हिम्मत करके बराह रास्त मुझे मुखातब किया। ए आतून, अगर तू चाहे तो तेरी आरज़ू पूरी हो सकती है। ये तेरी खुशकिस्मती है कि नज़ार गुज़श्ता रात ही यहाँ आया है और मैंने तेरी खातर सरदार अव्वल से गुजारिश की कि मेरी मेहमान अजीम नसार से मिलने की आरज़ूमंद है। पहले तो अव्वल ने मुझे टाल दिया, मगर जब मैंने मिन्नत समाजत की तो वह राजी हो गया। कुदरत ने नज़ार से मिलने का ये बहुत अच्छा मौका फराहम कर दिया था। समीन इस तरह शायद गुज़श्ता रात पेश आने वाले वाक़े की तलखी को कुछ कम करना चाहता था, वरना उसको अव्वल की मिन्नत समाजत करने की क्या जरूरत थी। मैं समीन के साथ सरदार अव्वल की हवेली चलने पर राजी हो गई। ऐ तरीर, तू यहाँ अपनी बहन के पास ठहर, मेरा इंतजार कर, मैं नज़ार से मिलकर अभी आती हूँ। ये कहते हुए मैंने अपने घोड़े की लगाम भी उसे थमा दी। जल्दी करना ऐ खातून, हमारा सफर खासा तवील है, तरीर ने ताकीद की। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द लौट आऊं और तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, मैं बोली और फिर उसके साथ चल दी। रास्ते में समीन ने मुझे मुखातब किया। ए आतून, रात के वाक़े पर मैं सख्त शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। दरअसल ताशी बहुत दिन से बीमार है। तेरी बीवी ताशी की बीमारी और रात को पेश आने वाले वाक़े का आपस में क्या ताल्लुक है? मैंने तीवरी पर बल डालकर बोला। दरअसल मैं उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं सकी, वरना ये सवाल ना करती। दोनों बातों के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है, मगर तू शायद इस ताल्लुक को नहीं समझ सकेगी। ए आतून, मैं तो बस ये चाहता था कि तू मुझे माफ कर दे। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है, और मैंने और मेरे देवताओं ने तुझे माफ किया। मैंने वाकई फराख दिली के साथ उसे माफ कर दिया और कुछ ही देर के बाद हम पत्थरों से बनी एक बुलंद इमारत के सामने पहुंच गए। इमारत के दरवाजे पर मसला मुहाफिज मौजूद थे। उन्होंने मुझे रोक लिया। ए आतून, अपने हथियार यहीं दे दे, समीन ने मुझसे कहा, और मैंने अपने बदन पर सजे सारे हथियार एक एक करके मुहाफिजों के हवाले कर दिए। और इसलिए ये कोई गैर मतवक्का या नई बात नहीं थी। अमूमन सरदार के पास मिलने की खातिर जाने वालों से हथियार ही रखवा लिए जाते हैं। वो इमारत अंदर से बहुत साफ सुथरी और अच्छी थी। मुझे वादी सबज की अपनी हवेली याद आ गई, जहां मेरा बचपन गुजरा था। वो भी इस हवेली की तरह हवादार, रोशन और साफ सुथरी थी। मैं समीन के कई राहदारियों से गुजरकर एक बुलंद दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे के बाहर मुझे एक मसला मुहाफिज दिखाई दिया। सरदार अव्वल से जाकर कह दे कि मैं अपनी मेहमान को उससे मिलवाने ले आया हूँ, समीन ने उस मुहाफिज से कहा। ठीक है, तू यही रुककर इंतजार कर, मैं सरदार को खबर देता हूँ। यह कहकर वो मुहाफिज दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा उठाकर अंदर चला गया और जरा ही देर के बाद वो बाहर आकर बोला, ऐ समीन, सरदार ने मुलाकात की इजाजत दे दी है, अपनी मेहमान को अंदर भेज दे। तू जा ए आतून, समीन मुझसे कहने लगा, मैं यहाँ तेरी वापसी का इंतजार करूंगी। मैं अस्वात में सर हिलाकर आगे बढ़ी और दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। सामने एक मसंद पर लहीम शहीम शख्स बैठा हुआ था। मैं बतौर ताजीम उसके सामने पहुंच कर झुकी और वो भारी आवाज में मुझे मुखातब हुआ। ए आतून, मैं अजीम सरदार नज़ार का नायब अव्वल हूँ। मैं उसकी जुबान से उसका नाम सुनकर हैरान हुई तो उसने कहा, मुझसे अपना नाम सुनकर हैरत ना कर, समीन ने मुझे तेरा नाम और तेरे बारे में उससे मालूम था बताया है। अब तो मुझे बता कि अजीम सरदार नज़ार से तुझे क्यों मिलना है और उससे तेरी मुलाकात का सबब सिर्फ उसे देखना तो ना होगा। ए अजीम सरदार नज़ार के नायब अव्वल, तू ठीक ही कहता है। क्या तुमने सरदार आशिम का नाम सुना है? उस नेक और बहादुर सरदार आशिम को कौन नहीं जानता? अव्वल चौंक कर बोला, उसी को कत्ल करके मोहसिन दरवेश और जालिम सियार ने वादी सबज पर कब्जा किया था। और क्या ए अव्वल, तुझे ये भी मालूम है
कि मकतूल सरदार आशिम की कोई बेटी भी थी। हाँ, मुझे ये खबर भी है कि जिस रोज वादी सबज के बड़े मैदान में सफाक सयान ने रहमदिल सरदार हाशिम की गर्दन कटवाई और फिर कटी हुई गर्दन पर जलता हुआ तवा रखवाया, तो देवताओं का कहर जाग उठा। देवताओं ने काली आंधी, तेज तंद हवाओं के जरिए अपनी नाराजगी का इजहार किया। देवताओं से रहम की भीख मांगने के लिए बस्ती एर उसी वक्त सजदे में गिर पड़े और इसी दौरान में बस्ती का महापुजारी सरदार आशिम की 8 साला बेटी को लेकर वहां से फरार हो गया। महापुजारी और सरदार आशिम की बेटी ने अजीम सरदार नदार के अजीम बाप सरदार आशिर की बस्ती में पनाह ली और मुखबिरों ने यह खबर जालिम सयान तक पहुंचा दी। सयान ने सरदार आशिर की बस्ती पर शब खून मारा। खैर, ये बात की बातें हैं, ना बाद में ना कहीं वह पुजारी मिला और ना सरदार आशिम की बेटी। उस दिन के बाद आज तक उन दोनों का कोई पता नहीं। तू कहाँ है और उन पर क्या गुजरी? आसपास बसने वाले कबाइल का ख्याल है कि जालिम संग दिल सयान ने उन दोनों मोशियों के साथ ठिकाने लगवा दिया है। और मैंने तुझसे ये तमाम वाकयात इसलिए बयान किए कि ऐ आतून, कि तू इस सिलसिले में मजीद कोई सवाल ना करे और जान ले मुझे सब कुछ मालूम है। अब तू मुझे बता ऐ आतून कि इन वाकयात से तेरा क्या ताल्लुक है। मैं समझता हूँ कि अगर इन वाकयात से तेरा कोई ताल्लुक ना होता तो मजलूम सरदार आशिम और उसकी यतीम बेटी के बारे में तू कोई सवाल ना करती। नायब सरदार अव्वल ने तफसील के साथ गुजरे हुए वाकयात उसे अपनी वाकफियत का जिक्र किया। ए अव्वल, क्या तू यकीन करेगा कि इस वक्त तेरे सामने मजलूम मकदूल सरदार आशिम की बेटी खड़ी है और मैंने उस पर खुद को जाहिर कर दिया। मगर जहां तक मुझे इल्म है सरदार आशिम की बेटी का नाम आतून नहीं कुछ और था। अव्वल चौंकते हुए बोला, क्या तू ये साबित कर सकती है कि तेरा दावा? उसी वक्त उस कमरे का अंदरूनी दरवाजे का पर्दा उठा और अव्वल की बात अधूरी रह गई। पर्दा उठाकर एक यको वजीब पुरकशिश नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसका कद लंबा और सीना चौड़ा था। अव्वल ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और आने वाले को झुककर ताजीम दी और मैंने भी नवार्द की ताजीम में झुक गई। उस नौजवान की शख्सियत में रूब दबदबे के साथ अजीब सी कशिश थी। उसके रूबे रू खुद ही दिल झुक जाने की तरगीब देता था। किसी और को तो मुझे इल्म नहीं, हाँ अपने बारे में जरूर मालूम है। मेरी यही कफियत थी। उस नौजवान की उम्र ज्यादा नहीं और वो आहरस का हम उम्र मालूम होता था, मगर बाद में ये बात गलत साबित हुई कि वो आहरस से 7-8 साल बड़ा था। उसकी सेहत इतनी अच्छी थी कि वो अपनी उम्र से खासा छोटा लगता था। उसके दावे का सबूत अगर ये सच्ची है तो इसके दाएं शाने पर होने चाहिए। ए अव्वल, उस नौजवान ने कहा, और फिर मेरे अंदाजी के मुताबिक सरदार आशिर का बेटा नज़ार ही हो सकता है। अगर ऐसा ना होता तो अव्वल उसे ताजीम देने के लिए अपनी मसंद से ना उठता। मैंने मजीद वक्त जाया किए बगैर अपना दायां शाना खोल दिया जिस पर सांप का फन गुदा था। उस नौजवान ने मेरे करीब आकर निशान का जायजा लिया। अजीम सरदार आशिर का बेटा मजलूम और नेक दिल सरदार आशिम की बेटी माबला को खुश आमदीद कहता है। यह कहते हुए नौजवान ताजीमन घुटनों के बल मेरे सामने झुक गया और उसकी तकलीद अव्वल ने भी झुककर ताजीम दी। और फिर उस नौजवान ने, जिसके सर के बाल शानों तक बड़े हुए थे, मुझसे मसंद पर बैठने की दरख्वास्त की। शुक्रिया ए अजीम बाप के बेटे नज़ार, यह कहकर मैं मसंद की तरफ बढ़ गई। नज़ार ने मुझे इतना एहतराम दिया है कि खुद मेरे करीब मसंद पर ना बैठा और उसके नायब अव्वल ने भी वही किया और वो दोनों मसंद के सामने दो जानू होकर बैठ गए। और फिर नज़ार मुझसे मुखातब हुआ, मुझे अब तक याद है ए बाबला कि मेरे बाबा से तूने ही शब खून की पेशगोई की थी और मेरे खुद ही बाबा ने यह बात बताई और मैं भी अपने बाबा के साथ ही जंगी तैयारी में मसरूफ था। जब बाबा के साथ वक्त ढल जाने के बाद हवेली लौट कर आया तो वहां तू मौजूद नहीं थी। मालूम हुआ कि तू हवेली की किसी खादमा को साथ लेकर सैर को निकली थी। नज़ार मुझे इस तरह का वाकया बता रहा था जब मैं उसकी बस्ती से फरार हुई। बचपन की बातों और यादों में बड़ा जादू होता है। ये जादू उस वक्त भी मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा था और मेरा जी चाह रहा था कि नज़ार यही बातें करता रहे और मैं इसीलिए नज़ार के खामोश होते ही बोल उठी, तो ए नज़ार, क्या तेरे अजीम बाप ने मुझे तलाश नहीं कराया? क्यों नहीं? नज़ार ने बताया कि तेरी तलाश में ये रात भी खुल गया कि महापुजारी भी गायब है और फिर हवेली की वो मुलाजमा भी बेहोशी की हालत में मिल गई। तू जिसके साथ सैर को निकली थी उसे पहाड़ी दर्रे में बेहोश पाया गया। उसने बताया कि जब वो तेरे साथ
उस दर्रे से गुजर रही थी तो किसी ने उसके सर पर पीछे से ज़रब लगाई और फिर उसे कुछ खबर नहीं कि कहाँ गई। बाबा के हुक्म पर उसके आसपास के इलाके में तुझे तलाश किया गया, मगर तू ना मिली, ना पहाड़ पुजारी का कोई सुराग मिला। शायद ये अच्छा ही हुआ ऐ मावला, वरना आज तू जिंदा ना होती। यकीनन जालिम सियान तुझे और महापुजारी को कत्ल करा देता। उस रात जालिम सियान ने जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी। उसने सुबह होने पर मेरे बाबा के वफादारों को कत्ल कराया और फिर नदार की आवाज भर्रागे। फिर मुझे मालूम हुआ कि सुबह होते ही मेरे बाबा की गर्दन मार दी गई और उसकी कटी हुई गर्दन पर तो उस वक्त कहाँ था, मैंने दानिस्ता नदार की बात काट दी। सुबह होने से पहले मैं अपने बाबा के चंद जान सारू अपने कुछ वफादारों दोस्तों के साथ बिड़ता बस्ती से फरार होने में कामयाब हो गया था। नसार ने मेरे सवाल का जवाब दिया और फिर मजीद बताया कि परसियान ने वहां पर कब्जा कर लिया और अपनी जगह अपनी ही की तरह का जालिम एक सालार वाहब को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। क्या तूने वाहब से अपने हक के लिए जंग नहीं की ऐ नजार? मुतअद्दिद बार जंग की, मगर मैं उसकी ताकत को ना तोड़ सका। उसकी कोई खास वजह मैंने दरियाफ्त किया। हाँ, करीबी दो बस्तियों के सरदारों ने भी सियान की ताकत को तस्लीम कर लिया है और उसने सियान से मुआहदा किया है कि उन पर किसी दुश्मनी की तरफ से हमला सियान पर हमला समझा जाएगा और उसके साथ सियान के ज़ैर नगीर किसी भी इलाके पर हमले को उन दोनों कबीलों पर हमला तस्वर किया जाएगा। अपने तहव्वुज़ और सलामती की खातिर दोनों कबाइल ने सियान से इत्तेहाद कर लिया है। जंगी नुक्ता नज़र और महल्ले वकूफ़ के एतबार से दोनों कबाइल का ये इत्तेहाद हमेशा सियान के नायब वाहब के लिए सूदमंद साबित होता रहा है। ऐन मुश्तरका का जोर के वक़्त हमला आवर फौज पर अकब से हमला हो जाता है और ये हमला करने वाले दोनों इत्तेहादी होते हैं। इसी तरह हमारी फौज दो तरफ से दुश्मन के नरगे में फंस जाती है। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। ऐ मावला, तू ये बता कि अचानक यहाँ किस तरह नमूदार हो गई और इतने अरसे तू कहाँ थी? मुख्तसरन मैंने नज़ार से अपनी रूदात बयान कर दी।